सो हेलो एवरीवन. ठीक है, बहुत अजीब लग रही हूँ एंड लॉट ऑफ थिंग्स मे बी. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सम कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू रैंक बाय इंडिया टुडे. ओके, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रैंकिंग नहीं है, वो हर साल देते हैं. इट इज़ 2025 रैंकिंग एंड लेट मी टेल यू colleges you guys were asking for preferences. You can go for these preferences. I have no problem with that. At the end I'll gonna tell you, for like I'm going to tell you on what criterias you choose your college, what are the main criterias. Okay, let's jump into this. First is Maulana Azad, second KGMU, then BHU, Faculty of Dental Science, Postgraduate Institute of Dental Science, Manipal Dental College, Manipal. Yes, Manipal is a really nice college. Most of our teachers in our college are from Manipal only. Even our principal sir is from Manipal, and I can see they are really proud of it. Everyone should be proud of from wherever they come from, you know, if it is a nice college. So you choose wisely according to your marks. Okay, then Nair Hospital Dental College, then Government Dental College and Hospital. We are not talking about colleges much. ठीक है, एट द एंड मैं बता दूंगी कि कॉलेज में यू नो हाउ यू लुक फॉर अ कॉलेज. ओके, Nair Hospital Dental College, Government Dental College Hospital in Mumbai, Government Dental College and Hospital Nagpur, Dr. Ziauddin Ahmed Dental College Aligarh, Faculty of Dental Science at Bangalore, then Manipal Dental College. Again, the previous one was in Manipal, this is in Bangalore, or Mangalore, whatever it is. Okay, Christian Dental College and Hospital, Ludhiana. Then SDM College of Dental Science and Hospital, Government Dental College, Tiruvanthanpuram. I hope I have said it right, whatever it is. Okay, Government Dental College and Hospital, ठीक है, औरंगाबाद. Then Sri Ramachandra Dental College, Chennai. ITS Ghaziabad, yeah, ITS Ghaziabad comes first. It is way much older than what our college is. Its campus is quite big. हमसे तो बड़ा ही है ITS ग्रेटर नोएडा वालों से, क्योंकि उनका कैंपस काफ़ी पीछे तक है. मतलब मैं जब विजिट के लिए भी गई थी तो भी मैंने देखा था. एंड रिसेंटली वी हैड आवर ऑक्लूजन इज़ अ फेस्ट बोथ ITS do, and this year it was their turn, although let me give my honest review, it was not nice this time because of बारिश एंड वो सब मेन कॉन्सर्ट और ये सब होता है and वो हो ही नहीं पाया. एंड आई डोंट थिंक कि वो रीस्केड्यूल करा रहे हैं सब कुछ, तो काइंड ऑफ वेस्टेड माई मनी टू. ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनकी गलती नहीं थी. आर्टिस्ट आया था, बारिश हो गई, हो नहीं पाया. ओके, ITS इंटर गाजियाबाद हो गया. हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शिमला, डॉक्टर हरवंद सिंह जज इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़, AB शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस बेंगलुरु. देन आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस. Okay, I do not need to speak about it. Manav Rachna, it's here in Ghaziabad, Faridabad, Ghaziabad I'm saying. In Faridabad, Haryana only. I've gone there twice or thrice, twice. Or once, twice, maybe. Okay. Then Bapuji Dental College and Hospital. Then Bharati Vidyapeeth, which is a deemed university. Okay. Which is in Pune, and the last comes my college, ITS Dental College. It is according to India's Today 2025 ranking. इससे पहले मतलब हर साल रैंकिंग आती है, एंड इट इज़ नॉट अ हार्ड एंड मतलब ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये रैंकिंग है तो बस यही रैंकिंग देगा सकते हैं. ऐसे बहुत सारे रैंकिंग्स हैं अकॉर्डिंग टू विच कॉलेजेस आर ऑन डिफरेंट पोजिशन अकॉर्डिंग टू whatever they have given points college for. What I'm saying is, if you are looking for a college, you should look in a college by judging it with few points. पहली चीज़, एक टाइम के बाद कैंपस लाइफ, फ्रेंड्स doesn't matter and it won't exist even for you guys also. एक टाइम बाद तुम खुद ही उन्हीं दो लोगों के बीच में रहोगे, दो भी नहीं, मेरे हिसाब से एक ही रह जाएगा कोई, ठीक है, जिसके साथ यू विल क्रिएट अ गुड बॉन्ड. अगर किस्मत अच्छी हुई तो पूरा ग्रुप किसी का नहीं होता. ये फर्स्ट ईयर ज़्यादा सेकेंड ईयर तक की बात है.
अनटिलनेस आप बहुत पुराने ही दोस्त हो एंड यू आर टेकिंग एडमिशन साथ में, ऐसे कि हम तो बिछड़े से ना बिछड़े, वरना तो कोई चांस नहीं बनता. एंड उसके अलावा what you should look for in college is first the patient flow. पढ़ाई किसी कॉलेज की, मुझसे बहुत सारे बच्चे हाउ इज द फैकल्टी एंड दिस एंड दैट, यू थिंक इन कॉलेज इट इज़ नॉट अ स्कूल, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरी चीज़, यू थिंक फैकल्टी रियली मैटर्स इन द वे ऑफ स्टडिंग. वो पढ़ा भी देंगे, तुम्हें नहीं पढ़ना होगा तो तुम नहीं करोगे, बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है. पढ़ाते वो 40 बच्चों को, 40 नहीं मतलब मेरे उसमें तो 30 की एक क्लास होती है, 30 और 33 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 या ज़्यादा 100 की पूरा बैच ही एक साथ क्लास हो जाएगी. कभी 100 हुए ही नहीं आज तक, ठीक है. तो 50-60 बच्चे जो भी होते हैं, क्या लगता है आपको कि मतलब 50-60 बच्चों को वो हर किसी को अलग तरीके से पढ़ाते हैं? पढ़ा तो वो सबको सेम रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस वो सबको सेम दे रहे हैं, तो भी तो वो 4 बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं. इट इज़ अप टू द चाइल्ड, ठीक है. और ऐसा भी होता है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में नहीं बता रहे होते टीचर्स, इतना नहीं होते वो एक्टिव, बट वो पेपर बढ़िया एकदम ऐसा बनाते हैं कि ओ हो पेपर में सब छाप देंगे वो, मतलब इतना डिटेल पढ़ा नहीं रहे होते पर पेपर बहुत अच्छा बनाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो. आप यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो जाते हो, बट तो भी उसमें भी तो कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं ना. तो आफ्टर अ पॉइंट इट डजेंट मैटर हाउ you know how teacher is telling you to do things and all of that. What matters is you doing for your own self. तो पढ़ाना वढ़ाना तो ठीक है, you can ask me for faculty कि हाँ नहीं, if they are, you feel like I feel teachers are really experienced, they know what they are teaching, they know what they are doing, they have their concepts clear in their mind. वो अपने आप में ही doubtful नहीं है, they are enough confident in themselves, they are enough for you to know what to be, you know, done and known at your UG level. They are enough for you to teach you and to tell you. For me, at least, for my college. ठीक है, that's how you judge it. Patient flow, you judge it. Patient flow is the major criteria that you judge a hospital or college, because पढ़ लिया आपने, ठीक है, कहाँ अप्लाई करोगे? इट इज़ नॉट MBBS. MBBS में आपको पेशेंट फ्लो अच्छा खासा चाहिए होता है, पर MBBS में ही है, इट्स अ होल बॉडी, तो बहुत अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो होता है. एंड पीपल टेक नाउ डेज बॉडी सीरियसली. ओरल कैविटी आज भी मैं देखती हूँ, ओहो आई डू स्केलिंग इज क्लीनिंग. People are not really aware of oral hygiene. They don't know. Even some people are aware of oral hygiene, they still don't know how to brush properly. So at some places they are not able to clean because they do not know how to and to what areas you have to clean your mouth. Okay, so there are a lot of things. तो patient flow काफ़ी matter करता है, क्योंकि सच में MBBS में भी अबाउट कि पढ़ लो, जितना पढ़ोगे, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा डायग्नोसिस होगा. पढ़ोगे, डायग्नोसिस तो देना ही है, वो तो बेसिक क्राइटेरिया है ही. बिन पढ़े डायग्नोसिस आप दे नहीं सकते, पर डायग्नोसिस के बाद हैंडवर्क है जो करके ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा बैठे बैठाए, और ना किताब पढ़ने से आएगा. कितनी से कितनी अच्छी किताब पढ़ लेना, उसे चाट जाना, पेशेंट नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा. यही होता है. ओके, तो यू हैव टू जज द कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट फ्लो, द प्राइमरी एंड द फोरमोस्ट थिंग. सेकेंडली, you can ask for teachers and all. And what I think also, like from what university it is affiliated from, like mine is affiliated from Atal Bihari Vajpayee, which you know is a good university. और अभी कुछ टाइम से अटल ने अपने अंडर BDS लिया है, लाइक आई एम 22 बैच, तो मेरे से एक सीनियर बैच 21 बैच उन्होंने अपने अंडर लिया है, और तब से ही अटल बिहारी वाजपेयी में BDS स्टार्ट हुआ है, वरना उससे पहले सिर्फ MBBS और ये सब होता था. ओके, तो पेपर भी मतलब कोई एक सब्जेक्ट तो ऐसा होता है कि वो पेपर ऐसा बनाते हैं कि बेटा पढ़ा होगा जिसने रट के और जिसने पूरा सिलेबस किया होगा वही पेपर कॉन्फिडेंटली अटेंड करके आ पाएगा. कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि सिलेबस बहुत होता है एंड देयर इज़ दिस हैबिट ऑफ रीडिंग पर्टिकुलर थिंग्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, आई हैव सीन इट, पीपल मतलब सीन पीपल बाहर निकलता है, ये क्वेश्चन ही कहाँ से था, ये कौन सा डिजीज़ है, ये कहाँ था, ये ऐसा भी होता है, ऐसे भी पेपर आते हैं. तो यू रियली नीड टू वर्क हार्ड. ऐसा नहीं है परोसा हुआ मिल जाएगा, BDS से अरे हो जाएगी क्या, MBBS वालों को होता ही होता. पढ़ना पड़ता है, लिख के ले लो. कोई ऐसा 30 मार्क खानी होगा जो किताब ना उठाए, एक दिन पहले किताब उठाए और वो बहुत अच्छे नंबर टॉप मार रहा हो, नहीं हो सकता.
तुम्हें अपनी चीज़ की बहुत कैडी नॉलेज हो, बहुत ही कैडी एकदम डिफरेंट लेवल की, बिन पढ़ाई नहीं हो पाएगा। रेगुलर बेसिस पढ़ाई, 1 दिन पहले 2 दिन पहले, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चल जाएगा, थर्ड ईयर भी चल जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा लेंदी है, थर्ड ईयर चल जाएगा। फोर्थ ईयर में 8 सब्जेक्ट है, देख लो 1 दिन पहले पढ़ के क्या उखाड़ सकते हो, मैं भी देख लूँगी, तुम भी यही हो मैं भी यही हूँ। अभी तो मेरा आने वाला है वैसे, मेरे तो थर्ड ईयर में हो, पता है मेरी थर्ड ईयर से इतनी नहीं है, ऐसे अंदर से होता है कि मैं थर्ड ईयर की तो चलो ठीक है, रगड़ा रगड़ू के कैसे तो करके हो जाएगा। फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट में मैं क्या करूँगी जिस हिसाब मेरे पढ़ने के हाल है। ओके, हम अपना रोना नहीं गाएंगे, बट ठीक है, यू गाइज नीड टू look these things into college, and all the best for your future। और कुछ ठीक है, these are the primary things। कैंपस देखना है, बिल्डिंग्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, और देख के अच्छा लग रहा है, देख के लग रहा है कि ऐसा होगा, ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है। लुक योर स्टैट्स, लुक एट द अमाउंट, लुक एट द प्रूफ, नॉट वॉट दे आर सेइंग वर्बली। इसलिए मैं कहती हूँ, कोई मुझसे पूछता है इस कॉलेज का पेशेंट फ्लो कैसा है, अरे मुझे हर कॉलेज का पेशेंट फ्लो ऐसे ही पता करना है तो वो तो किसी की वेबसाइट पे जाके भी मिल जाएगा। जो मेन पेशेंट फ्लो करना है, पता करना है, वो जाके देखोगे, उनके रजिस्टर्स चेक करोगे, स्टैट्स देखोगे, वहाँ के बच्चों से बात करोगे, तब पता चलेगा। तो आई कैन नॉट टेल यू द पेशेंट फ्लो ऑफ ईच एंड एवरी कॉलेज। वट एवर यू गाइज आर एमिंग फॉर, whatever college you guys are aiming for, look for these thing at least। मैं नंबर बता के एंड येस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, तो आप यहाँ के आसपास के जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए क्वालिफाइड हो। अब वो डिमांड पे डिपेंड करता है, अगर बहुत डिमांड होगी, अगर मान लो 400-500 वाले नंबर वाले बच्चे ही एडमिशन लेने के तैयार है, तो कोई 150 वाले नंबर को क्यों लेगा। क्वालिफाइड हो आप इनफ। अगर उन पर लास्ट सीट 2 सीट बच गई जिसमें कोई नहीं आ रहा होगा और आप लोग ही होगे सिर्फ 2 बच्चे एडमिशन लेने के लिए 150 वाले, तो वो 150 को भी दे देंगे, उन्हें अपनी सीट भरनी है, वो भर देंगे, उसमें कुछ नहीं है। बट अगर वहीं पे 300-350 वाले आपके साथ कंपटीशन में, तो कोई आपको एडमिशन क्यों देगा। दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। हर्ट होने वाली बात नहीं है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, एंड दिस इज़ व्हाट यू गाइज नीड टू लुक इन अ कॉलेज for now। Bye, I'm up for any questions and I'm doing it, although I'm really tired and sometimes I just put my phone aside क्योंकि बहुत messages and all that चल रहा है। But I'm at Telegram, I'm not on Instagram। Telegram is a basic for students studying, have done NEET and all that, okay। So first of all you can contact me on Telegram, and second of all you can text me on YouTube wala cheez। I'm slightly less active on YouTube comment section। You guys are most welcome on Telegram with the same name, Dental Drama Jyotika Chauhan। And for now, bye bye guys, I'm done for the day and I still have a lot of things to do। Bye।